Shut down the air purifier companies. Shut them down. The government will do something. एक पट्टी बांध के वो बैठी हुई है, उन्हें नहीं दिख रहा कितनी सीवियर कंडीशन हो गई है। The moment you wear it, you will feel like you're in Himachal. आपको सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन को हटाना है, प्रदूषण नहीं करना, प्रदूषण करने से पहले उसको रोकना है। ऑन दैट दे हैव सेट सम स्लोगन्स, एंटी नेशनल स्लोगन्स। जिन लोगों ने हिडमा के स्लोगन्स चांट्स किए थे, सिर्फ वो डिटेन हुए कि जो नहीं मोदी जी ये पॉल्यूशन का कम करवा दो, क्योंकि कुछ लोगों की मौत हो जाती है। देयर इज नो कंट्रोल। वहाँ खड़े होकर कोई बोल रहा है अभी, और अभी तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, बाद में मीडिया पे आ जाएगा, तो इसका मतलब सब एंटी नेशनल हो गए। Basically your lungs. Your parents' lungs. It's 3rd of December 2025 and I'm here at Jantar Mantar. पिछले बीते एक महीने में this is the 4th major protest that has been organized by the citizens of Delhi protesting against the rising air quality situation here in Delhi. यहाँ पे protest पे आके I came across this poster that says Alexa play I can't breathe. एक सेम सा गाना मुझे भी याद आया. I would like to request Alexa play सांस में तेरी सांस आई तो मुझे सांस आई, समथिंग लाइक दैट. लेकिन यही दिक्कत है कि दिल्ली वालों को सांस नहीं आ रही है. इंडिया में बहुत जगह लोगों को सांस नहीं आ रही है और लोगों की शिकायत है कि सरकार सुनने को तैयार नहीं है. वी आर एट दिस प्रोटेस्ट. वैसे तो पिछले प्रोटेस्ट में दैट हैपेंड एट इंडिया गेट, जो तीसरा मेजर प्रोटेस्ट था, दैट वाज काइंड ऑफ allegedly sabotaged by few people who were raising slogans for हिडमा. मगर आइए चलिए आज लोगों से इस प्रोटेस्ट में बात करते हैं कि मुद्दा क्या है, डिमांड्स आज भी वही है और सरकार सुन क्यों नहीं रही है. एक तरफ देखा जा रहा है कि मुंबई में बस 200 का AQI हुआ और ग्राफ 4 इंप्लीमेंट हो गया है. वहीं यहाँ पे 400 जूझ रहा है दिल्ली, 400 से जूझ रहा है. लेकिन अभी तक जो है ग्राफ 2 पे अटकी हुई है दिल्ली की सरकार. आइए लोगों से बात करते हैं, चलते हैं. 301 shows the AQI monitor, Which means 15 cigarettes a day. 15 cigarettes. Tell me something about this HEPA filter. How long have you been carrying it? No, I'm not carrying it. I have to dismantle it because I purchase this filter every year. I have to purchase this every year. And When did you purchase it? this one was in the month of November, like just after the Diwali. So just after the Diwali, And you haven't cleaned it since then? its color was like this. Okay. When you buy a new one, it's like pure white. And this is so, we are not. जब तक हमें दिखाई न दे सामने, we don't live in abstract. We have to see on the face of it. In reality, we have to see it. So this is basically your lungs, your parents' lungs. Okay, now this really scares me. If this is the condition of my lung and everyone living in Delhi, it has to scare everyone. Not just Delhi, because Delhi is capital of India. So we talk a lot about it because we are politically aware and Parliament is here, just 200 meters away. But I'm coming from Chandigarh. Okay. It was 350, 400 when I came last evening from there. 315 Chandigarh? Yes, and I came from before that I was in Dharamshala, McLeodganj. I was there for Vipassana. McLeodganj, which is around It's in Himachal, yes. in like quite high. It was 100 AQI there. Dharamshala, it was roughly 180. Can you imagine? Dharamshala 180, McLeodganj 100 AQI. क्या कह रहा है ये लाइन? क्या लिखा हुआ है? आप क्या बना रहे हैं? लाइफ लाइन। He drew a symbolic line on the road that says lifeline. की लाइन है और लाइन के सामने लिखा हुआ है lifeline. क्यों बना? आपका नाम क्या? आपकी उम्र कितनी है? पहले ये बताइए. मेरा उम्र 11 साल है और मेरा नाम आदर्श है। आदर्श, आप क्या कर रही है? लाइन आप क्यों बना रहे हो? इस लाइन के आगे पीछे आप लाइफलाइन क्यों लिख रहे हैं? पॉल्यूशन के बारे में हो रहा है ये सब। आपको होती है दिक्कत सांस वास लेने में इधर दिल्ली में? हाँ, पॉल्यूशन कुछ ज़्यादा ही, फैक्ट्री से धुआं निकलता है कितना सारा, हमें सांस लेने से कुछ लोग हैं। आपको पता है किसकी जिम्मेदारी होती है देश चलाना? कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? नरेंद्र मोदी। तो अगर आपको मौका मिले मोदी जी से कहने का, रिक्वेस्ट करने का इसके बारे में कि एयर पॉल्यूशन कुछ करिए, तो आप कुछ कहना चाहेंगे तो कह दीजिए. मोदी जी ये पॉल्यूशन का कम करवा दो, क्योंकि कुछ लोगों की है। Were you there at the last protest that happened at India Gate last Sunday? No. Do you have any idea what went wrong or what happened there? I don't know who they were. I was not part of that, so I don't know. Like, were there any genuine protesters in that crowd? I'm sure there must have been, because not all were arrested, so I'm assuming
बिकॉज आप जब प्रोटेस्ट की कॉल देते हैं तो ऐसे कितने लोग आते हैं आपको क्या पता, यहाँ पर उधर भी खड़े हैं लोग, उधर भी खड़े हैं। मैं खुद हैरान हूँ, NSUI ने इतना बड़ा ये सब बना दिया यहाँ पर, तो पता नहीं होता ना क्या कौन क्या कर रहा है, you know. So do you have any idea what went wrong? Were there any people who you personally knew? No, I knew of a couple of people there because I saw when I saw this, I saw images of them in the earlier protests also at Jantar Mantar and India Gate. Do you think it will sabotage the movement of people protesting against air pollution? See, one that they have said some slogans, anti-national slogans, which is there is no control. वहाँ खड़े होके कोई बोल रहा है अभी, और अभी तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, बाद में मीडिया पे आ जाएगा, तो इसका मतलब सब एंटी नेशनल हो गए। ऐसे नहीं होता। The government knows that, and I don't think the police or anyone has ever even tried to badmouth the earlier protests in any way. But these are chances you have to take. There will be elements, there will be bad elements. It's everywhere. That is why I think the special cell and all, they call also. They were calling at that time also. They want to. They said we like to know everything, so we protect the people here also. You know, all those kind of things. But we never know what is happening behind the scenes. So I don't think there is any reason of being so. Anyone who is being so aggressive and they have attacked the police with pepper sprays, etc., that is not acceptable. Slogans or not is something really unnecessary, but obviously something like that is not acceptable. One last question. What's with this artistic approach of protesting by the youngsters? Like people are dancing, singing, there's Bollywood music everywhere. Do you think in some way this might gonna, trivialize the whole idea of protesting against serious issues? Okay, ma'am has some views. Yes, Not at all, not at all. It'll never trivialize. You speak with the audience. It's a form of expression. Nobody here is saying the current AQI is good. It doesn't matter what what their form is. It's just an expression. Whether they are speaking, whether they are. I mean, you need to figure out the message and not the way the message is being conveyed. So not at all. I think it's a good expression. Okay, ma'am. Do you have an air purifier back at home? I don't, and I don't want to buy one. All right, I have. Why so? Because I want the air to be clean. I want the air to be clean. Why should I invest in an air purifier? The government is supposed to give me basic, way of living, right? Okay, ma'am, one last question. You just said that you won't buy an air purifier. You want the government to clean the air. What if, hypothetically, the situation aggravates, gets worsened more and more? What do you do then? Shut down the air purifier companies. Shut them down. The government will do something. Right now, they are buying air purifiers on taxpayer money. Their offices have it, their homes have it. Shut down these companies. Let there be no access to air purifiers. The government will do something. मैंने यहाँ पे नोटिस करा कि आज का जो प्रोटेस्ट है, जो चौथा मेजर प्रोटेस्ट है अभी तक एयर पॉल्यूशन को लेकर दिल्ली में, यहाँ पे इन्होंने बहुत आर्टिस्टिक अप्रोच लिया है अपने प्रोटेस्ट को, अपनी आवाज़ को, अपने मुद्दे को आगे लाने के लिए। बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स का आयोजन हुआ था। पीपल वे डांसिंग, सिंगिंग, एवरीथिंग अराउंड द एग्रेवेटिंग क्वालिटी ऑफ एयर इन दिल्ली। तो दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग कि यंग इंडिया का प्रोटेस्ट करने का तरीका भी जो है कुछ नया है, कि अपनी बात ये रखना भी जानता है और अपनी बात को सही तरीके से, आर्टिस्टिक तरीके से, क्रिएटिव तरीके से लोगों के कान तक, सरकार के कान तक जानती है ये जनरेशन। टेल मी समथिंग अबाउट योर मास्क। व्हाट काइंड ऑफ मास्क इज दिस एंड हाउ मच डिड इट कॉस्ट यू? This is roughly 500 rupees, and this is industrial mask. When you work in a very hazardous industry, where in that closed area, the AQI is more than 500. But I see we live in Delhi, it's already 300. इस मास्क से होता क्या है? कितना कुछ प्योरीफाई करता है, कितना फिल्टर करता है ये? So it is like this filter only, like the best quality of this filter. So the moment you wear it, you will feel like you're in Himachal. You actually feel my nose are blocked, my throat is like a little irritated. But if I wear it for like 10-15 minutes, my nose suddenly becomes open. I'm looking for solid steps. What solid needs to be done? So the only thing that's going to work, first of all, your bent of mind has to change, which is the previous government and this government. They have been working on पोल्यूशन करो फिर उसको साफ करो, ये नहीं होगा। आपको सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन को हटाना है, प्रदूषण नहीं करना, प्रदूषण करने से पहले उसको रोकना है। सो विच इज़ द डिफिकल्ट पार्ट, एंड दैट पार्ट ऑल्सो डजंट शो बिकॉज दीज आर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, दीज आर सिस्टमिक चेंजेस. This is what the government needs to do. Empower your authorities, your various departments. अभी तक आपके स्टेट पोल्यूशन बोर्ड्स में 50% वेकेंट पोस्ट पड़े हुए हैं. क्यों इतने साल लग गए आपको? सिटी दैट इज
a country that's battling, unemployment. How can you not have people? 100 किलोमीटर के ऊपर एक फॉरेस्ट गार्ड है, वो कहाँ जाएगा? कौन सा पेट चेक करेगा? वो क्या करेगा? आपका MCD है, उसमें लोग नहीं है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से बात करिए कभी सड़क पे जाके, उनके सिर्फ आंसू नहीं निकलते. I mean, they're standing since 5 o'clock in the morning, and जिस दिन बारिश हुई है या कुछ है, वो रात को 10 बजे तक ड्यूटी कर रहे हैं. Where are the people? So this is a very big flaw. We are not working on something which is most important. And then once you have people, then they are the ones who are going to go on the ground. They will check the compliance. आपकी कौन सी फैक्ट्री compliance कर रही है, नहीं कर रही है. अभी तो बहुत मुश्किल है ही नहीं. आपके DPCC में लोग ही नहीं है, वो कहाँ चेक करेंगे? कौन देखेगा? और देख भी रहे हैं, और जो हैं भी गिनती चुनती, वहाँ इतनी करप्शन है. मैं एक स्पेशल चीज़ पे जो है अपनी जनता की नज़र डालना चाहूँगा. इससे पहले मैंने और 2 प्रोटेस्ट कवर किए थे एयर पोल्यूशन को लेके, एक इंडिया गेट पे, एक जंतर मंतर पे, जो पहले 2 मेजर प्रोटेस्ट थे. तो उन प्रोटेस्टों में मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी कि जितने भी ऑफिशियल्स थे, डिफेंस ऑफिशियल्स थे, जो भी डिफेंस स्टाफ था, पुलिस वाले थे या फिर सिक्योरिटी पर्सनल्स थे, उनमें से किसी के चेहरे पर मास्क नहीं होता था. और ये मैंने वीडियो में भी इस चीज़ पर रोशनी डाली थी, हाईलाइट किया था. लेकिन वहीं आज मैं जब ये चौथा मेजर प्रोटेस्ट आप कह सकते हैं एयर पोल्यूशन के लिए एयर इन दिल्ली जंतर मंतर, तो आज मैं नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी पर्सनल्स के चेहरे पे भी मास्क है. इवन दे आर रियलाइजिंग कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज समथिंग एक्सट्रीमली डेंजरस, हजार्डस, जिस सिचुएशन में, सिनेरियो में वो रह रहे हैं. क्या कन्वे क्या करना चाह रहे हैं आप इस आंखों पे पट्टी, मुंह पे मास्क और नीचे इस प्लाकार्ड से? मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि सरकार जो है वो हमारी तरह हो गई है. एक पट्टी बांध के वो बैठी हुई है, उन्हें नहीं दिख रहा कितनी सीवियर कंडीशन हो गई है. मैं किताबें बेचता हूँ जय कृष्ण मूर्ति की. एयर प्यूरिफायर है आपके घर पे? अफोर्ड ही नहीं कर सकता. क्या लगता है आपको सरकार क्या नहीं कर रही है जो उन्हें करना चाहिए अभी इस सिचुएशन में? सबसे पहली बात है सर कि हमने उन्हें चुन के भेजा है, हम उन्हें टैक्स देते हैं. वो उनकी जिम्मेवारी बनती है कि एक साइंटिफिक कमेटी बनाए और वो रिसर्च करे कि क्या क्या किया जा सकता है. क्योंकि कोई आज नया नहीं है, बहुत सारे देशों ने ये कर रखा है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. जहाँ तक मेरी निजी राय है, तो पहली बात, जितने सीवेज के लाइन हैं वो खुले हुए हैं, उससे गैसेज निकलती है. जितने इलीगल रूप से बिना मेम्ब्रेन लगाए हुए फैक्ट्रियाँ अपना धुआं छोड़ रही है NCR में, वो बंद किया जाना चाहिए. कूड़े का सही तरह से निस्तारण किया जाना चाहिए. जो कूड़े हैं वो जहाँ तहाँ बिखरे पड़े हैं, जो पहाड़ खड़े हैं कूड़े के चारों तरफ दिल्ली के, चाहे गाजियाबाद हो या फिर आगे पीछे हो, वो सब हटने चाहिए. और जो आगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो सही होना चाहिए. आप अगर 8-9 बजे निकल जाओगे, सुबह या शाम निकल जाओ 8 बजे रात को, आपको जाम मिलेगा ही मिलेगा. 1 किलोमीटर जाने के लिए 1 घंटा लग जाएगा. चिरांशु, ओके चिरांशु, वर यू देयर एट द इंडिया गेट प्रोटेस्ट, जो थर्ड प्रोटेस्ट हुआ था? Yes, I was. टेल मी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इन ब्रीफ इन शॉर्ट कि एग्जैक्टली उस दिन हुआ क्या? Well, there were a number of groups that had come about to organize the protest, and there were a number of common students who came as well, right? I am from Scientists for Society. We had also given a call that day. But 2 of the organizations that participated in that protest, without informing anyone else who had come, or any prior intimation, or even there, they started putting out posters and slogans which were not related to the issue at hand, right? We had agreed to come to the protest precisely because we had been organizing a number of such protests and campaigns on pollution, right? Now they did that. As soon as they did that, we told them that you should not do this, and we decided they did not listen to us, so we decided to separate the protest, right? You have any idea which groups these were? नाम याद है आपको उन ग्रुप्स के या लोगों के? हाँ, मतलब वो तो आप मीडिया में पढ़ ही सकते हैं. BSCM और हिमखंड से थे. BSCM नाम के एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से वो लोग थे. मतलब उनको अरेस्ट जो किया गया है, अभी डिटेन किया गया है, वो तो बिल्कुल गलत है और उनको तुरंत छोड़ना चाहिए. और वो जो भी इशू रेस करना चाहते थे, उस इशू को उन्हें अगर रेस करना, जिन लोगों ने हिडमा के स्लोगन्स चांट्स किए थे, सिर्फ वो डिटेन हुए कि जो नहीं, बहुत सारे कॉमन स्टूडेंट्स को भी पुलिस ने वहाँ पर डिटेन किया जिनका उससे कोई रिलेशन नहीं था. अभी भी डिटेन है, अभी भी कस्टडी में अरेस्टेड है. एंड द होल ट्रायल हैज बीन कंप्लीटली, आई डोंट नो व्हाट टू नेम इट. इट हैज नॉट बीन अ very fair trial so far, right? You have police coming in and saying without any basis that we are going to conduct investigations, we need more time.
the court is just granting them more time. It is not listening to the fact that there is no evidence at all for many of them that they had any association with the slogans or the posters, right? And you saw the kind of brutality that the police inflicted as well. तो ऐसा नहीं है कि सब लोग वहाँ पर वही लोग अरेस्टेड हैं, बहुत सारे उसमें कॉमन स्टूडेंट्स भी हैं जिनका इससे कुछ लेना देना खास नहीं। Now, why do you think कि सरकार कुछ कर नहीं रही है? ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है सरकार अभी तक, जबकि सिचुएशन इतनी एग्रेवेट हो चुकी है ऑलरेडी? सरकार क्योंकि वो छोटी छोटी दूसरी बातों पे भटक रही है। दिवाली पे उन्होंने क्रैकर्स की अनुमति दी जब प्रदूषण के AQI लेवल्स इतने ऊंचे थे, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला ग्रीन क्रैकर्स बढ़ा सके, ये तो बिल्कुल ही धोखा था क्योंकि ग्रीन क्रैकर्स कुछ हो ही नहीं सकते। और वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला कुत्तों को शेल्टर्स ले जाओ, जब शेल्टर्स है ही नहीं। तो जैसे ग्रीन क्रैकर्स नहीं है वैसे डॉग शेल्टर्स भी नहीं है, तो हमको घुमा फिरा किया जा रहा है, कोई असली चीजें बताई भी नहीं जा रही है। Ma'am, do you happen to have an air purifier back at home? I don't, but I have a cough. How long have you been in India? Only 2 days. And how are you dealing with the air pollution thing? Like, is it difficult for you to breathe here in India, in Delhi? I can feel it in my throat and in my lungs. I feel a big difference. Okay, ma'am, a hypothetical situation. If something similar happens in Canada, what would the government in Canada do to tackle the rising air pollution thing? If it happens in Canada at all? People would be up in arms. People would be up in arms. They would be super upset. We don't have the same kind of air pollution, but people would be protesting in bigger numbers than this. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you. देखिए, प्रोटेस्टर्स को जितने टाइम की परमिशन थी वो अवधि ख़त्म हो गई, तो ऑफिशियल्स ने, सिक्योरिटी पर्सनल्स ने उनको हटा दिया, यहाँ से जगह खाली कर दी, तो प्रोटेस्टर्स अब नहीं रहे इस जगह पे, वो जा चुके हैं, अपने अपने स्थानों पे निकल गए। पीछे बच गया है ये सेटअप, कुछ पोस्टर्स, इतने सारे पोस्टर्स मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे गिरे हुए हैं। अब पता नहीं वो जल्दीबाजी में ले नहीं जा पाए कि ऐसे ही छोड़ दिया गया इन्हें। सब पैकअप हो रहा है, जो भी है यहाँ पे लोकल काम करने वाले सब पैकअप कर रहे हैं। ये चौथा मेजर प्रोटेस्ट है पिछले 1 महीने में अगेंस्ट द राइजिंग एयर पॉल्यूशन हेयर इन दिल्ली। एंड वन थिंग इज़ वेरी क्लियर कि जनता हार नहीं मानेगी, विच रिमाइंड्स मी ऑफ अ वेरी पॉपुलर डायलॉग फ्रॉम द 2015 मूवी मांझी द माउंटेन मैन, वेयर मांझी, दशरथ मांझी कीप्स ऑन सेइंग, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। दिल्ली की जनता भी कुछ वही स्पिरिट लेके अभी तक डटी हुई है, लगी हुई है, सरकार से पुहार लगा रही है कि जब तक ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे एयर पॉल्यूशन के समाधान के लिए, तब तक दिल्ली की जनता हार नहीं मानेगी। बाकी ऐसी ही और ग्राउंड रिपोर्ट्स, न्यूज़ इनसाइट, स्टोरीज के लिए मेक श्योर टू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब द एज ओरिजिनल्स। दिस इज मृणाल कुमार साइनिंग आउट विथ वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक कोहली।